A very good morning, my dear students. So yesterday I have given you this homework, test your best. Many of you have submitted your work, some of you have not submitted. So those who have not submitted, please submit your work as soon as possible and do it. It is for your benefit. So let us discuss these question and answers and then we will continue further. So in the first question we have to identify the picture. So these were very easy. These were given in your chapters that we have studied. So first picture is of temples of Bali, that is in Indonesia. Now this is an art form which is Worli art form for Maharashtra and Gujarat. This is the largest water animal. Okay, I mean largest water animal amongst turtle. So this is the largest turtle, you can say. And this is Angkor Wat, Cambodia, which is at a time was the largest city. This is Pompeii city, Italy. Okay, which was, you can say, which was completely buried by volcanic ashes, है ना? We have studied it. And this is the picture of Mr. Kailash Satyarthi, who was a Nobel laureate from India. Okay, so this was that. Now identify the following using hints. और इनको इनमें हमें क्या करना है, identify करना है, and they have given us the hints. A marsupial native to Australia. So ऑस्ट्रेलिया का फेमस एनिमल बोला गया है, तो वो कौन होता है, कंगारू होता है. Indian painting practiced in Mithila region. So Mithila region is Bihar. Okay, so the art form of Mithila or Bihar is Madhubani. Size of the largest alligator. So many of you have written 4 meter in it. So generally the size of alligators is 4 meter. Okay, so 4 meter के alligators होते ही हैं, but इसमें क्या बोला गया है, size of largest alligator, whether it is alive or dead, but one of the largest alligator was of 8.64 meter. So the answer for this would be 8.64 meter. That is why. Discovered by an American historian Hiram Bingham. Okay, so इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, माचू पिचू डिस्कवर किया था, which is in Peru, and Peru is located in South America. Okay, earliest known civilization of Indian subcontinent. So this is very easy, you have studied this in SST also. Indus Valley civilization. Now true and false. So all of them are true. Okay, so I hope you have done also. So all of them, the statements that are given to us here are true. Okay, next was match the following. So tongue measuring 45 centimeters. So an animal whose tongue measures 45 centimeter is giraffe. Traditional painting of Odisha, Pattachitra. Island amongst these is Tasmania. Located in Iraq is Ur. And inventor of paper is Ceylon. Okay, we have studied all these. Now the crossword puzzle. First one was Mesopotamia. Okay, second one was Troy. Hints are given here. According to that we can do. Now this volcanic ash buried city, it is Pompeii, और यू कैन से इटली. ठीक है, इटली में लोकेटेड है वो. यहाँ पर हमें जो हिंट दी गई है उससे हम इटली का नाम जानते हैं. तो बेसिकली उस सिटी का नाम क्या था, Pompeii was the name of the city, but it is located now in which is a you can say visitors place now is located, it is located in Italy. Okay, so that was all in the test your best and you have done it gratefully. Those who have not done, please do it. Now we will move to the next chapter. So the next chapter for today is Great Statues of the World. Okay, so great statues of the world, that is what we are going to study today. Okay, तो statues basically क्या होते हैं my dear students, ये आप कह सकते हैं कि जनरली मूर्तियाँ होती हैं. ठीक है, मूर्तियाँ जो होती हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, बहुत एपिक होती हैं, बहुत यूनिक होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्टैचूज़ बोला जाता है. और स्टैचूज़ जनरली बहुत सारे बनाए जाते हैं, बट सम ऑफ द statues are made so beautifully that are unique in their way, and that is why they are very famous amongst the world. Okay, so we are going to study about those statues that are very famous in their way in the world. So let us begin. You can see the picture here. Okay, so this is the picture and this is the brief of this picture. Let us study. It is the world's tallest statue
ट्वाइस द साइज ऑफ न्यूयॉर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सबको पता होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्या होता है, एक लेडी की का स्टैचू है जिन्होंने अपने हाथ में एक मशाल पकड़ रखी है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, विच इज अ ग्रेट piece of artwork, okay, and it is located in New York, America, okay। So ये क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जितना साइज है उसके डबल साइज का ये वाला स्टैचू है। आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस स्टैचू। इट हैज़ अ व्यूइंग गैलरी एट अ हाइट ऑफ 153 मीटर। और इसमें क्या बनी है, एक व्यूइंग गैलरी बनी है जिसमें से हम बाहर की तरफ को देख सकते हैं। और वो गैलरी कितनी हाइट पे बनी हुई है, 153 मीटर्स की हाइट पे है। एंड दिस स्टैचू इज लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वो कहाँ पर है, वो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। सो ये क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ओके। और ये किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, ठीक है। इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ओके, ठीक है। और ये हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट, इट इज अ साइट ऑफ 2 temples built by Pharaoh Ramesses II in the 13th century BC. The site is located in Egypt and lies near the मॉडर्न सूडानीज फ्रंटियर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात हो रही है मिडल ईस्ट की, ठीक है। ये अगर आपके पास एटलस है या फिर वर्ल्ड का मैप है तो आप उसमें इजिप्ट को लोकेट कर सकते हैं, सूडान को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं तो वहाँ पे कौन होते थे, फ़ैरो होते थे, ठीक है। आप कह सकते हैं फ़ैरो किनको बोला जाता है, एक तरीके से आप वहाँ के राजा जो होते हैं, जो वहाँ पे शासन करते हैं, रूल करते हैं, उनको आप क्या बोल सकते हो, फ़ैरो बोल सकते हैं। उनको एक आप कह सकते हैं एक टाइटल दिया हुआ था फ़ैरो का, ठीक है। सो फ़ैरो कौन थे उस टाइम वहाँ पे, उनका नाम क्या था, रामेसीस सेकंड, ठीक है। तो 13th सेंचुरी की ये बात है, ठीक है। देख लीजिए कितनी पुरानी बात है। तो उस टाइम पर वहाँ पर ये स्टैचूज बनाए गए थे। द टेम्पल्स वर अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड अंटिल देयर रीडिस्कवरी इन 1813। सो ये क्या था, 13th सेंचुरी के बने हुए थे। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो भी हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं इनके बारे में पता नहीं होता है तो इनको क्या करा जाता है, डिस्कवर किया जाता है। नाउ दीज आर रीडिस्कवर्ड इन 1813, यानी कि 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तब इनको क्या किया गया, रीडिस्कवर किया गया। दे वर मूव्ड इन 1966 व्हेन द असवान हाई डैम वॉज बिल्ट। सो जब कोई और चीज़ बनाई जाती है तब जो भी होता है, डिगिंग होती है या फिर आप कह सकते हैं खुदाई वगैरह के काम होते हैं, कटाई छटाई बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो उस टाइम पर क्या होती है, कई चीज़ें जो कि डिग्ड इनसाइड द अर्थ, जो कि क्या होती है, बर्ड हो जाती हैं इनसाइड द अर्थ, वो क्या होती है, डिस्कवर हो जाती हैं, ठीक है। सो ये कैसे मिले, असवान हाई डैम जब वहाँ पे बन रहा होगा 1966 में, तो इसको वहाँ से हटाया गया और या फिर ये वहाँ पर मिले थे, ठीक है। सो ये हैं वहाँ के स्टैचूज, आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स में भी दोबारा इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका नाम क्या है, अबू सिम्बल, ओके। इन स्टैचूज को नाम क्या दिया गया, अबू सिम्बल। नेक्स्ट वन इज, इट इज अ स्टील स्कल्पचर। ये क्या है, स्टील से बना हुआ है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट गेटशेड इन द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का अनदर नेम क्या है, ब्रिटेन है, वहाँ पर ये लोकेटेड है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इट स्टैंड्स 19.8 मीटर हाई एंड हैज़ अ विंग स्पैन ऑफ 53.3 मीटर एंड वेज 200 टन्स। सो इसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है यहाँ पर। स्टील से बना हुआ है ये स्टैचू। इट वॉज डिजाइंड बाय एंटोनी गॉमले एंड वॉज इरेक्टेड इन 1998, ठीक है। सो ये कब बना था, किसके थ्रू बना था, ये भी इन्होंने हमें बताया है। और इसका नाम क्या है, एंजल ऑफ द नॉर्थ। इसको नाम क्या दिया इन्होंने, एंजल ऑफ द नॉर्थ। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
ये अपने आप में जो स्टैचूज़ हैं बहुत यूनिक हैं, इनका एक अलग सिग्निफिकेंस होता है, और ये हम क्यों पढ़ें, बिकॉज दीज आर द ग्रेट स्टैचूज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये क्या है, ग्रेट स्टैचूज हैं इस दुनिया के, अपने हर एक फीचर में, अपने हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, लेंथ वाइज, हाइट वाइज, विड्थ वाइज, वेट वाइज, these all are great in each and every respect of their characteristics, their features, unique, you can say. Okay, fourth one is, it is located in Tokyo, Japan. So you can see that these statues are from different horizons of the world. It is one of the world's tallest statues. So this one is also world's tallest, one of the tallest statues. It was unveiled in 1993. So ये कब बना था, या फिर कब इसका आप कह सकते हैं, अनवील्ड का मतलब होता है उद्घाटन होना, 1993 में हुआ था। वेज 1000 टन्स। सो देख लीजिए आप, ये 200 टन्स का है, बट दिस वन इज 1000 टन्स। ओके, और 1 टन इज इक्वल टू 100 kg। सो 1000 मीन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इज 120 मीटर हाई। तो इसकी हाइट भी हमको यहाँ बता रखी है। It was built to commemorate the birth of Shinran, founder of Zodo Shinshu or True Pure Land School of Buddhism। और ये क्यों बनाया गया था, किनके सम्मान में बनाया गया था? कमेमोरेट का मतलब होता है किसी को सम्मान के तौर पर, ठीक है, उनको ये एक सम्मानित करा गया इसको बनाकर। और ये क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्थ हुआ था शिनरैन का। वो कौन थे? जोडो शिंशु या फिर ट्रू प्योर लैंड स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का वहाँ पे फेवरेटिज्म किया जाता है, वहाँ पे कल्चर है, बुद्ध रिलीजन को वो लोग फॉलो करते हैं टोक्यो जापान में। दैट इज वाई दे हैव बिल्ट दिस स्टैचू। ठीक है, सो दिस स्टैचू इज नेम्ड एज उशिकु दाइबुत्सु बुद्धा। ठीक है, उशिकु दाइबुत्सु, इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धा। सो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसका नेम रख दिया। क्या रखा? उशिकु दाइबुत्सु। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड्स में आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, और करेक्ट स्पेलिंग यू विल राइट इन योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, उशिकु दाइबुत्सु, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। Next, dear students, please go through these pictures very carefully, very clearly and very attentively, so that if you can see this picture anywhere else and the name is not written there, you are able to identify these pictures. Okay, so just remember or just recognize these pictures carefully. It is the world's biggest monument. Now this is also the world's biggest monument. It is carved into Thunderhead Mountain. सो ये कहाँ पे कार्व किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? एक माउंटेन में इसको बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके आसपास आपको पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं, जिसमें इसको क्या किया गया है? कार्व किया गया है, यानी कि माउंटेन को खोद खोद कर इसको बनाया गया है। जैसे कि हम पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर बनी है। इट इज़ 172 मीटर हाई एंड 195 मीटर लॉन्ग। सो देखिए इसकी हाइट और लेंथ दोनों दे रखी है। Work on the carving started in 1948 and continues to this day. This day means आज तक भी वो carving हो रही है। It is located in South Dakota, USA. So this is in South Dakota, United States of America. Once completed, it may become the world's largest sculpture as well as the first non-religious statue to hold this record. So dear students, this statue is independent of any religion. This is not related to religion. अभी तक हमने जो देखा था उसमें क्या हो रहा था, जो अबू सिंबल था वो भी क्या थे? एक रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे, बुद्धा का एक रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे। तो क्या होता है, जनरली जो स्टैचूज बनाए जाते हैं कई बार वो आप कह सकते हो कि किसी रिलीजन से बेस्ड होते हैं, बट दिस इज फ्री फ्रॉम एनी रिलीजन, दिस इज नॉन रिलीजियस स्टैचू। ओके, सो ये क्या है? एक स्कल्पचर है, इसको कार्व करके बनाया जा रहा है। ठीक है, जो नेचुरल हमारे पास पत्थरों का एक पहाड़ है उसमें कार्विंग करके इसे बनाया जा रहा है। 1948 से ये स्टार्ट हुआ है और अब तक ये बनने में ही है।
सो अगर ये बन के तैयार हो जाता है तो इट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कल्पचर, ठीक है। और इसका नाम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रेजी हॉर्स। अभी इसको जो नाम दिया गया है दिस इज क्रेजी हॉर्स। यहाँ पर आप हॉर्स की कार्विंग देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज लोकेटेड इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील। सो ये कहाँ पे है, ब्राजील में है, और ब्राजील आपका लोकेशन है साउथ अमेरिका, ठीक है। It stands high above the city and is reached by a mountain railway. It is 38 meter long and weighs 1163 tons. तो आप देख सकते हैं, ठीक है, लोकेशन वगैरह सब इसमें प्रोवाइड करी हुई है। It was unveiled by Guglielmo Marconi, ठीक है, in 1931. It's quite complicated name, just remember it by Marconi, okay. In 1931 he unveiled it by sending a radio signal from his yacht in जिनोआ इटली। सो देखिए आप, इन्होंने ये ब्राजील में था और इसको अनवील कहाँ से किया, जिनोआ इटली, ठीक है, यूरोप। इटली कहाँ पड़ता है, यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और आपका ये कहाँ पर था, ब्राजील, विच इज इन अमेरिका, सदर्न अमेरिका। सो द डिस्टेंस यू कैन सी, तो ये रेडियो सिग्नल यूज करा था इसको अनवील करने के लिए। इटली में थे वो, यूरोप में, और उन्होंने इसे अनवील किया ब्राजील, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में टू बी प्रिसाइज, ठीक है। सो द नेम ऑफ दिस इज क्राइस्ट द रिडीमर, ठीक है। क्राइस्ट को आप सब जानते ही होंगे। सो दिस इज द स्टेचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर, ये नाम इनको दिया गया है इस स्टैचू को। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम ग्रेट स्टैचूज ऑफ द वर्ल्ड एंड वी शुड बी प्राउड दैट द tallest statue in the world is from our country. Okay, so you have to remember this. The tallest statue is in India, Gujarat. Statue of Unity is the name of that statue. Okay, so now there are pick and tick questions. You have to do these questions. Okay, they are based on the chapter that we have studied right now. So this is your homework. Okay, now in your notebooks what will you do, you will make two columns as we do every time. Make two columns, write on one side name of the statue and on the other side place of, yeah, or you can say location. Okay, what you will do, in your notebooks put the name of the chapter and make two columns. Okay, on the on one side you will write name of the statue, on the other side you will write location. Okay, so that is all for today, my dear students. We will begin something new, we will learn something new in your subject general knowledge in the next video. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.